बच्चों से ज्यादा ही फील किया होगा क्योंकि मैं अपने एग्जाम के लिए लेट हो गया था Okay. with Steel Authority of India. And after working a few years in HR, where I was a specialist, then naturally wrote the exam, passed, and was placed as an assistant manager. Place, and you will get a wide exposure to the real India Yes. from such a wide spectrum, policy making maybe, हाँ. और ग्राउंड रियलिटी का भी. Reality. Interacting with DM as well as farmer thing. यस So. यस ये कहाँ मिलने वाला भाई. Yes. Come and join aspirants first. All those who are aspiring to join NABARD, and may God bless them with success. Hello everyone. So today we have an auspicious guest today with us, Dr. Dinesh Kumar Kapila sir. So sir has served in the various capacity in the NABARD, specifically in the various posts across the department. So rather than I'm telling about the journey of sir, we would like to hear from you. And because this session is related to the preparation also, क्योंकि बहुत सारे जो NABARD aspirants हैं, they are also watching दिस सेशन और उन्हीं की ये डिमांड थी कि दे जस्ट वांट टू हियर अस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की जॉब कैसे होती है, कैसे स्टार्टिंग होती है. सो हम उस पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे सर कि आपका कैसे रहा करियर और आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम स्टार्टिंग, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू रिटायर्ड हाउ यू रिटायर्ड एंड presently what are you doing? So this is the, I think, Okay. longest question Okay. then. No, thank you so much, firstly. And my best wishes to all aspirants first, all those who are aspiring to join NABARD, and may God bless them with success. Now, coming to my journey, actually, I started my career with Steel Authority of India. And after working a few years in HR, where I was a specialist, then broader horizons in a way you can say beckoned. And I thought this is a good opportunity to be more hands on in development. It was a new institution comparatively, 82 was formed. Yes. So I naturally wrote the exam, passed, and was placed as an assistant manager. I worked at various offices of NABARD, and over the years, our functions may have widened. Initially, there was a lot of focus on refinancing. That's what primarily the purpose was, and to Mm-hmm. a large extent, regulation or supervision of cooperative banks and the RRBs. And they were themselves very nascent institutions in a way, especially the RRBs. So it was more of an evolution. And what I deem myself lucky is, since I take an interest in management issues, was also a witness to the journey of an institution, how it evolved, how it opened up along the years, changed the course of its working at times, re-evolved, and then went on and became an institution of respect within the financial sector and even otherwise. I feel lucky to have served in financial inclusion, microcredit, infrastructure financing was my real favorite, to be very honest. RIDF, what we called Rural Infrastructure Development Fund, that just opened. It was quite a journey. It Okay. was not the time of computers. So we had to do a lot of writing and it was more lengthy reports, preparing appraisal missions, then going for draft sanction of memorandum for the board from the regional offices. Working in head office at a junior level, I was a junior officer that time, gave me a good perspective on how policies evolve. And I have worked in microcredit, non-farm sector, refinance, regulation. I think the entire spectrum in some capacity or the other with each designation. Then towards the end, I have also served as in charge of Kashmir and Ladakh. Okay. And in a very conflict zone, I could make out the hunger for credit. Okay. And it was very well there. And people really looked forward to developmental initiatives. So within reasonable, I would not say risk, but reasonable, you can say proactiveness, Hmm. I and my team managed to reach out to quite a lot of people, ground some initiatives like JLGs, Hmm. and we found people were receptive to it. So we find people are hungry for development. It's a deeply aspirational country. I have Okay. seen, say, the chili farmers of Madurai, and I have seen the apple farmer of Kashmir. You find the basic issues remain the same.
And over the years, that has been my learning. I last served in Himachal Pradesh, where I was CGM, Chief General Manager. And for me, it was a more of a homecoming. I had worked there earlier. And this state, a hilly state with its own geographical limitations and economic limitations linked to its geography, even then has very good social indicators. So it lets you know how a society can evolve. The intersection of politics, economics, development, you start working on that as you grow up and you grow older also. Post retirement, I am a mentor to two agri incubation centers. I write. Some papers do carry, not the main ones, but some papers do carry my articles at times. I blog and I do social work. The Morni Hills are nearby. With a water expert, Dr. Surinder Grewal, we try to look after small farmers there. And I'm the chairman and senior vice president of the Society for Blind and Institute for Blind. And we have got 175 blind students plus other works. So I keep myself reasonably engaged. I have written two books. One is already in print, The Varied Hues of Life. The very The days of other, life. it's Yes. The Culture East and West. Yes. It's written by my great grandfather. I've added my views and brought it back. Yes. I recently saw that on the LinkedIn. LinkedIn, yes. So that's Yes. going to, I think, another 10 days be out on Amazon and Amazon. Flipkart. All this I want to stress for your students who are aspirants is whatever I'm doing post retirement Hmm. comes from a deep experience in NABARD. Yes. When you work in a huge apex institution like NABARD, you gain a deep domain knowledge on developmental side, Hmm. on policy making, and there's a lot of confidence to deal with the government because you're Hmm. integrated with working with the government from the beginning. Yes. So whatever I do today, or I'm allowed to do, or I can manage to do, is to a large extent led by my experience of over 33, 34 years in NABARD. Nabat. That is something I wanted to stress for the students of your institution who are aspiring to write the written exam. Have patience, and then it happens, and it happens gradually. Now you Hmm. can't absorb whatever I absorbed within a year. Yes. It Exactly. comes over a period of time, Period of time. and it has stood me in good stead. It was a voyage of discovery. Many Hmm. of us sitting in urban areas. I'm a son Hmm. of an army officer, traveled across cantonments all my life. He was a war hero. I find that we were not really aware of the real India. So now when startups come to me and say, मेरे पास मैजिक आइडिया है, मैं उनको बोलता हूं, बेटा पहले वहीं जा, ग्राउंड पे घूम, अब मुझे बता 50 घरों ने क्या बोला. Okay. Then we will talk Yes. again. Don't give me an idea sitting here talking to zamindars who have got bungalows in Chandigarh. Talk to me after you go to the field. Field. Yes. So, in a nutshell, it's been a good journey. It had its ups and downs. No career is perfect. Hmm. In bouts of long stagnation, also maybe. But overall, you come out thinking, I served well. The institution looked after you, and it's looking after me post retirement also by way of pension and medical benefits. What more could a man ask for them? Yes. So, these are the various things I thought I should stress. Yes. So just a curious question. You started your journey in the NABARD from very beginning ना तो वो कौन सा ईयर था जब आपने स्टार्ट किया and you also said ना कि आपने भी असिस्टेंट मैनेजर वाला एग्जामिनेशन दिया तो जो आज हम कह सकते हैं जो एक्साइटमेंट और वो हम्म। डर होता है एग्जाम का आई थिंक वो आपने भी फील किया होगा अपने टाइम पे मैंने इन बच्चों से ज्यादा ही फील किया होगा क्योंकि मैं अपने एग्जाम के लिए लेट हो गया था. ओके तो मतलब या तो यह तकदीर में लिखा था कि पास होना है. प्रीलिम्स के लिए जब पहुंचा, माय सेंटर दैट टाइम वाज कलकत्ता हम्म बिकॉज आई वाज वर्किंग दैट साइड. तो जो भी मन में था कि इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, मैं लेट पहुंचा. एंड जब मैं अंदर गया, आई वाज अ लिटिल टेंस. हम्म आई डोंट नो हु दैट बंगाली जेंटलमैन वाज. और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, अब तो 15 मिनट गए तो गए, आप बैठ के लिखिए, आपने टेंशन नहीं लेनी है. और मैंने उसके बाद गर्दन नहीं उठाई और प्रीलिम्स पास हो गए. तो एक्साइटमेंट भी होती है, साथ में यू आर ऑल्सो फीलिंग विल आई पास. हाँ बिकॉज मन में एक फीलिंग होती है, घर वालों को छोड़ो, आपको अपने लिए फीलिंग होती है यस
कि भाई मैं इसके काबिल भी नहीं था क्या। हाँ। ये कॉन्फिडेंस था कि अगर सेल का ऑल इंडिया पास किया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, तो हम्म। ये भी हो जाएगा। ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव वाज डिफरेंट, इवन दैट टाइम इट वाज रूरल इकोनॉमी, सोशियोलॉजी एंड ऑल, जो आज भी है। हम्म। सो पास हो गए। फिर मेंस आया, उसकी तैयारी अलग करी। एक्साइटमेंट भी रहती है, एप्रीहेंशन भी रहता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एक ही चीज रहती है। एप्रीहेंशन के साथ इट ऑल्सो बिकम्स अ मोटिवेटर। हम्म। यू राइट इन अ डायरी, आई एटलीस्ट हैव दिस हैबिट, दीज आर माय वीक एरियाज, इसके ऊपर ओके। ज्यादा पढ़ाई करनी है। और आज भी वही आदत है। आज भी अगर आपके साथ बैठा हूं, प्रिकॉशन के लिए डायरी साथ रखी हुई है, कि कोई कोई बाउंसर आप पूछे तो मैं लिख के जरा सोच भी लूं साथ साथ। तो वो एक आदत डालनी चाहिए, मोबाइल की जगह। ये भी अच्छा काम है। Diary, yes. Actually, I also have a diary with me. So, actually क्या होता है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना, जो पुराने लोग थे उस टाइम पे तो एग्जाम बहुत इजी था या ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता था। सो दिस विल गाइड देम कि भाई नहीं, उनको पहले भी उनको जरूर बताइए। और हाँ। मैं भी अपने इंटरव्यू में आपको बता दूं, बच्चे हम्म। तब भी बहुत बैठे। हाँ, कंपटीशन एज था। लिमिट तब भी 27-28 थी। हाँ। कंपटीशन तब भी तगड़ा था। जो निकल जाता है वो, ये ना, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं जो प्रीवियस जनरेशन थी ना, हाँ। दे हैड इट वेरी इजी। यस। आपको नौकरियां मिली जाती थी, आप पहुंच ही जाते, वो ऐसा नहीं है। सब कॉम्पीट करके गए। अब मेरे यस। फादर 1947 कमीशन के आईएमए के, ओके। ठीक है, तो तब भी एग्जाम था। उनकी प्राइड थी कि मैं एग्जाम पास करके बड़े इंटरव्यू दे के पहुंचा वहां तक। सो दीज आर, ईच जनरेशन थिंक्स आई नो बेटर, हाँ। एंड ईच ओल्डर जनरेशन थिंक्स कि इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ बच्चे। यस। सच्चाई बीच में कहीं होती है। आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर रहेगा हर किसी स्टूडेंट को भी। कई बार क्या होता है, मतलब इंटरव्यू में वी हैव सीन, बट चलो अभी प्रीलिम्स वाला है तो अभी हम प्रीलिम्स वाला नहीं, डिस्कस बच्चों को करते ये भी बता दो हैं। कि बाद में करियर में भी जब इंटरव्यू आता है, आप हाँ। जितने भी कूल एंड काम पर्सन हो, उसकी यस। भी एप्रीहेंशन रहती है। यस, एक्चुअली दिस वाज आई वांट टू जस्ट शेयर कि वी आर ह्यूमन बींग्स। हाँ। आप कंट्रोल करना सीख लेते हो थोड़ा, पर फिर भी जब तक इंटरव्यू पूरा नहीं होता, स्ट्रेस लेवल थोड़ा ऊंचा ही रहता यस। है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। Yes, yes. So, like your book, Varied Hues of Life. So, similarly, from your joining to till retirement, and you shared the various aspect you did, and you worked in the NABARD. जो आपने कहा, शायद मुझे लगता है कि वो आपके दिल के बहुत पास है, कश्मीर और लद्दाख वाला। तो सर, यही आपका एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है या कोई और भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो आज तक आपके साथ है नाबार्ड का, जो आप बिल्कुल चेरिश करते हैं बार बार? नहीं, देखिए, मैं कश्मीर और उसको एक बार सारांश में बता दूं। हम्म। सबसे बड़ी बात क्या थी कि आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ जब ओके। वहां फ्लड्स आए सो ऑफिस दिस वाज में। रीसेंट ईयर? ये जो 2014-15 वाला था, 14-15, यस। 14 या 15, आई एम हम्म। फॉरगेटिंग द ईयर। हम्म। अब ऑफिस में भी अगर 21 फुट पानी था, माय गॉड। घर मेरा बह गया। ओके। 3 हफ्ते हम जम्मू रहे, फिर वापस इंडक्ट हुए। अब उसमें स्टार्टिंग योर लाइफ अगेन इन अ वे, कि आपका डैमेज भी हुआ है, फिर भी ऑफिस का काम भी करना है, हम्म। प्लानिंग भी करनी है। वैली के लिए बड़े इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के भी आ रहे थे, हेड ऑफिस के आ रहे थे, रिजर्व बैंक के आ रहे थे। सबके साथ कोऑर्डिनेट भी करना है, और ऑफिस को साफ सुथरा करके रीस्टार्ट भी करना है। तो आप जब इन मुश्किलों में होते हो ठंड के दिनों में, यू लर्न टू रीच डीप डाउन विद इन योर सेल्फ, कि कैसे इसमें से निकल के आऊं। सो इट वॉज नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट जोन एंड ऑल, इट वॉज ऑल्सो दिस। सेकेंड, जो आप बोल रहे हैं, जब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप चिन्मय तपोवन ट्रस्ट के साथ कांगड़ा में किया, ओके। ये कौन सी ईयर की बात है सर? ये 90s बहुत में? पहले की बात है। दिस विल बी समवेयर इन 90s। 90s। यस। So we found there was a deep desire again for credit in remote हम्म। areas. Dr. Shama Mehta, who used to head that time the Chinmay Rural Trust at Kangda, she was dedicated. Her ओके। team was dedicated. And again, मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन ना बोलूं, मैंने जर्नीज देखी। जैसे आज तक मेरे को एक महिला याद है, सीमा ठाकुर जी। ओके। शुरू में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ। वो उनकी मेन एनिमेटर थी, और फिर धीरे धीरे कितना बदल गई कि वो शिमला आके लेक्चर दे सकती थी। ये एक नहीं, कई थी। हाँ।
फिर गाइडलाइंस लिखी, लोगों ओके। के लिए किताब छापी इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि मेरे एक दो कलीग अच्छे हैं, नलिन राय, उनके साथ बैठ के, कि दीज आर सिंपल क्वेश्चंस विच ब्रांच मैनेजर्स हैव, देयर स्टाफ हैव, और एनिमेटर्स हैव, और हमारी हम्म। तरफ से इंग्लिश और हिंदी में इसका ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि उस समय मूवमेंट लॉन्च हो रहा था। फिर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमने काम बहुत किया, ओके। कैंप्स लगाए, लोगों को इनिशियल डेज में। इनिशियल डेज में। पहले, अब तो लोग सोचते हैं कॉमन है, हाँ। जब अभी शुरू तो। किया तो कितना लोगों के साथ घूमना पड़ा, बैठना पड़ा। These are journeys. Then my DDM tenure. ओके। हाउ I वाज was दैट? looking after रोपड़, नवाशहर, मोहाली। मोहाली उस समय रोपड़ का हिस्सा था, बाद में अलग हो, तब भी मेरे पास चार्ज रहा। हम्म। You get so much insight into district administration on the हम्म। developmental side, economic side, banking, planning, क्रेडिट डिमांड कैसे जनरेट होती है, बैंक्स कैसे उसको फुलफिल करते हैं, और आप क्या क्या प्लानिंग में इंटरवेंशंस कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। It's a very good journey. And I relished that tenure so much. You have autonomy, you get to do hands on work, and then it's not only planning, you're doing a lot of developmental work. यस। So you get to work a lot with the government departments across. हॉर्टी अभी भी आप हैरान होंगे, ब्लाइंड स्कूल में एक यंग में एक ओल्डिश आदमी आए, हम्म। वर यू नॉट डीडीएम रोपड़, नवाशहर, मोहाली? मैं कहा हाँ। कहता मैं उस समय डीआईसी में असिस्टेंट डायरेक्टर था, ओके। और कहता मैं तब भी कहता था आप ऊपर जाओगे और आप में कुछ है। मैं कहा जी, इतने सालों बाद रिटायर भी हो गया, 4 साल, आप ये कह रहे हैं तो मैं बड़ा खुश हूं सुन के, आज आपने मेरा दिन बना दिया। तो पीपल कैरी मेमोरीज। यस। यू इफ यू बिल्ड योर रैपो, यू बिल्ड योर प्लेस, यू बिल्ड योर रेपुटेशन, एंड वो डीडीएम टेन्योर टाइम देता है करने को। So I have found that also very fruitful. In fact, every post, every designation, and every opportunity gives you so many things. इंजीनियर्स का मैंने एटीट्यूड देखा पंजाब में उन दिनों में जब आरआईडीएफ आया। जैसे किताबें होती हैं ना और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सिर हाँ। पे रख के उठा लाए। हमने कहा भी गैप्स हैं। अचानक मैं और मेरे कलीग ने ऊपर देखा, वो दूर से आ रहे थे, सारी किताबें उठा के रख के सामने रख दी कि आप पूछते जाओ, ना ना करना। दिस वाज एक्चुअली आई वाज राइटिंग हियर, क्योंकि आप सर बता रहे हैं उस टाइम पे तो एसएचजीज भी स्टार्ट तभी हुआ था, हाँ ये प्रोग्राम एसएचजी, हाँ, बैंक लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज वाला। क्रेडिट तो सबसिक्वेंटली, केसीसी बिल्कुल। वाज आल्सो स्टार्ट 1998। हम्म, तो जब आपने ये वर्क स्टार्ट किया होगा तब तो बहुत सिस्टम प्रोसेसेस बनी नहीं होंगी जो नहीं आज नहीं, एस्टैब्लिश्ड हैं। यस, ये सब ऑन दी जॉब लर्निंग थी। और हेड ऑफिस का भी वही हाल था। हाँ। सर्कुलर आ गया, बहुत अच्छा बना हुआ, पर फिर हम कुछ और फीडबैक दे रहे हैं रीजनल ऑफिस से हाँ। फॉर एग्जांपल, फिर वो मॉडिफाई हो रहा है। पर उस प्रोसेस में काम बहुत हुआ, चलता ही गया, बिकॉज कार्डर वॉज कमिटेड। एक चीज हम्म। है, विद इन अस, वी मे नॉट टॉक लाइक अदर्स, हम्म। बट विद इन अस ऑल ऑफ अस कैरी a spirit, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, कंट्रीज। एंड दैट इज अ डीप मोटिवेशन। मेरे में तो है ही है, कई और मेरे कलीग्स में बिल्कुल है, कईयों में थोड़ा कम हो सकता है, बट द बेसिक फैक्टर रिमेन्स कि हम कुछ कर रहे हैं तो इससे हमारे देश की प्रगति हो रही है। यस। यू ऑल्सो लर्न, इफ आई मे से सो, आई डोंट नो वेदर आई शुड से ऑन यूट्यूब, समटाइम्स यू हैव टू लर्न टू कैलिब्रेट योर इमोशंस। उतना भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है नहीं। कि आपके ऊपर स्ट्रेन आ जाए। हाँ। काम अच्छा करो, बट देन लर्न टू ड्रॉ द लाइन कि बाकी मेरी अपनी जो जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसका भी उतना ही ध्यान रखना है। सो हम्म। यू लर्न टू बैलेंस एज द years go by. That also is a part of it. But a great commitment was there. And it was, as I said, na, I saw the institution evolve. That is the main thing I would like to stress. यस। एंड जब ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम सुनते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि अब द डेडिकेशन विद इन द कैडर आल्सो वाज देयर, तो अभी शायद जुलाई के मंथ में ही जब फाउंडेशन डे था नाबार्ड का, तो आई वाज रीडिंग आई थिंक इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, किसी में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, तो इन दैट दे मेंशन कि अभी जो फॉर्मल क्रेडिट का पेनिट्रेशन है, इट इज Hmm. नियरली 80% और मोर देन दैट। Hmm. और Hmm. 1980s तक भी ये 60% Hmm. भी नहीं था। तो मतलब Yes. जस्ट ये बिल्कुल वो हम कहते हैं ना, जो चेंज कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली चेंज कर दिया। जो पहले 20% था, अभी सिर्फ 20% का गैप होगा। तो देखिए, इसका
पहलू एक और भी है। अब आप जो बोल रहे हैं कितना फैक्ट है, जब मैं डीडीएम बना हम्म। अर्ली 2000 2001 टू समथिंग, मेरे को आदत थी बोलने की, आपको बैंक लेक्चर दे रहे हैं सपोज फील्ड में, हाँ हाँ आपको ब्याज इतना लगेगा। हाँ। मैं अभी आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस बता रहा हूं, तो बंदे कहते हैं ज्यादा हैगा। देन वी अच्छा। लर्न टू से, अरे नहीं, हम पर मंथ नहीं बोल रहे, हम पर ईयर बोल रहे हैं। फिर मैंने अपने बैंकर कलीग्स के साथ मीटिंग करी, और हम सब ने एलडीएम के साथ बैठ के फैसला किया, जैसे हम बोलेंगे सपोज थानू ब्याज लगूगा 12%, कि पंजाबी में 12% ब्याज है, हाँ। तो ਅਸੀਂ कहेंगे कि हमने महीने का 1% लाना है। ओके। Now people realized we are better than money lenders largely by a huge margin, because हाँ। मनी लेंडर उस समय रोपड़ में पहाड़ी इलाकों में 10% महीना और बाप रे। प्लेन्स में 5% महीना ले रहा था। बाप रे, महीना महीना। 5% अ तो मंथ। जब मैंने पहली बार लेक्चर में 12% बोला, वो घबरा गए। फिर जब अच्छा। महीने का बताया, तो आपका मैंने सप्लीमेंट किया है कि इट्स नॉट क्रेडिट ग्रोथ, साथ में भी समझाना पड़ा है। यस, एक्चुअली यही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, उस समय तो अडॉप्शन था ही नहीं। यस। तो वो आप कैसे लेकर आए, और आज तो मतलब केसीसी तो अभी सभी को पता है, बिकॉज आई आल्सो वर्कड इन द बैंक। तो केसीसी फार्मर खुद ही आते हैं, कहीं वो फार्म क्रेडिट बोलते हैं, कहीं वो क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, बट उनको सब कुछ पता है। और लोगों को कुछ हद तक अब कंपाउंडिंग समझ आ रही है, हाँ, समझ आती है। शुरू में नहीं आती थी। हम्म। लोग कहते थे मेनू नहीं पता, मेरे को नहीं पता ये ब्याज कैसे इतना बन गया। हाँ। लोगों को समझ आता है। तो इंडिया की जर्नी है ना फिर, हाँ। यही तो इंडिया की जर्नी है। हम सिर्फ फार्मर बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज द जर्नी ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियंस। आप जो यस। गरीब लोग काम करते हैं एज लेबर, अगर बिल्कुल। उनके बच्चे स्कूल तक जा पा रहे हैं, आप उनका बोल बोलना और उनका एटीट्यूड में और उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड में फर्क देखिए, बिकॉज एम्पावरमेंट थोड़ी तो आई है, अवेकनिंग आई है। दैट इज द इनसाइट। तो सर, ओवर द ईयर नाबार्ड का रोल भी काफी इवॉल्व हुआ है, एज यू आर आल्सो टेलिंग। सो फ्रॉम सुपरविजन टू फाइनेंशियल रोल टू द डेवलपमेंटल रोल, और अभी तो क्लाइमेट चेंज में भी, एंड बिकॉज इट इज मतलब सभी को दिखने लगा है अभी तो, चाहे यस। फील होता हो नहीं होता हो। तो आपको क्या लगता है कि नाबार्ड का सबसे जो इम्पैक्टफुल रोल है या फिर पार्ट है, वो इसमें से कौन सा है? मैं अगर पहले आपसे बोलूं हम्म। कि मैं किसी एक रोल को हाईलाइट ना करना चाहूं, बिकॉज हाँ। एन इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, यस, एक्चुअली इट इज all things have to play together. टुगेदर। Credit also requires, क्लाइमेट चेंज में क्रेडिट भी चाहिए, हाँ। इनिशिएटिव्स भी चाहिए, पॉलिसी भी चाहिए। क्रेडिट के बिना नथिंग कैन वर्क। इनफैक्ट आई गेट अनॉयड व्हेन पीपल से पैसा सब कुछ नहीं है। मैं कह देता हूं आपने फिर अभी दुनिया देखी नहीं है, देखी नहीं। ये है, जरूरी है। अब मैं आता हूं जो आपने बोला, अगर हमारी जर्नी देखें और प्रोडक्ट्स बदले जैसे आप बोल रहे हैं, या हम्म। रोल्स बदले कई जगह या इवॉल्व हुए, इट्स अ जर्नी ऑफ इंडिया। यस। अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हम्म। वी आर फॉर्म्ड फॉर क्रेडिट एंड हम्म। रेगुलेशन एंड सर्टन अदर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। शुरू में इंस्टीट्यूशन की अपनी भी प्रॉब्लम रही, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व हुई, 1990 में नरसिम्हन कमेटी आई, हाँ। ठीक है, यस। इट ओपनड अप द बैंकिंग सेक्टर। हम्म। We also had to rechange. Now, when यस। I joined NABARD, we had to हाँ। use words like my rate of interest to banks as NABARD, हाँ। and then the what rate would be charged from by the bank to the actual recipient. ओके। Right? That was the regulation. हाँ। Then slowly, even the Reserve Bank did so and NABARD did so. We हम्म। said my rate is fixed, or there's हम्म। a band about it, but your rate is within certain norms, free with the bank. हाँ। इट वॉज, अब लग रहा है कि आप और मैं एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, एट दैट टाइम इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, हम्म। कि सडन चेंज, दैट सो मच फ्रीडम। ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, इट जस्ट टुक ऑफ, मेनी अदर एक्टिविटीज। देन वी हैड टू रियलाइज रूरल एस्पिरेशंस में हाउसिंग भी है, हम्म। व्हीकल्स भी हैं। वाई आर व्हीकल्स ओनली मेंट फॉर द वेल टू डू? The farmer also requires a vehicle. He requires a two-wheeler also. So that two-wheeler segment to farmers, जो एक प्रोडक्ट का नाम ही बन गया था काफी बैंकों का, हाँ। that evolved. So आप देखें, it's a journey of an economy. As it evolves, हम्म। as a major institution, it is our duty to read the signals, हाँ। predict the future,
टू सम एक्सटेंट, जो हमारे पीएलपी भी करता है या स्टेट फोकस पेपर. हाँ. एंड देन इफ यू रीड दो सिग्नल्स, प्रिपेयर योरसेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन एंड योर प्रोडक्ट्स एंड द बैंकिंग सेक्टर एंड योर कलीग्स, जो टीम है बाकी स्टेक होल्डर्स की, कि आगे का ये होने वाला है, हम लोग को इस जर्नी पे इधर चलना है. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो उसी कॉन्टिन्यूम में इस साथ आया है. बीच में अगर आपको याद हो, वी यूज्ड टू कॉल इट रूरल नॉन फार्म सेक्टर. Yes, farm You sector and rural हाँ non-farm sector. हाँ, then we called it off farm Off development. farm, yes. अब उसका एमएसएमई क्लासिफिकेशन है. Yes. ठीक है. तो इट इज एक्चुअली रोल जो बदल रहा है उसको Hmm. हाईलाइट किया जाए, दैट इज बीइंग ब्रॉट इनटू लाइट. नाउ एवरी रोल इज इंपॉर्टेंट. Hmm. I need to shift my rural population to MSMEs, Yes. which requires infrastructure, which Hmm. requires credit. Hmm. In alongside climate change आ रही है, उसकी तैयारी क्या करें. अब अगर स्टोन फ्रूट्स ज्यादा आएंगे, एप्पल की प्रोडक्शन कम होगी, तो हाँ. फार्मर्स को क्या तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए Yes. एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या बनाएं. गुड Hmm. स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग चेंज as Hmm. stone fruits. So these things have to be mapped out. Then how can you do risk mitigation and adaptation? Yes. That again goes back to change in agricultural practices, Hmm. goes back to again agriculture, extension and credit back. So all things start molding together. तो मैं कहूं every journey was path breaking, but जो Hmm. सबसे अच्छी जर्नी मैं कहूं significant, जिसने impact across India किया, was start away, because उसका impact which was felt, which Hmm. was rated and caught by everybody, was self-help groups and microcredit. Because 92 में जब शुरू हुआ, the concept of collateral free credit to women Hmm. did not exist at all. At all. From बिल्कुल. there to start saying hassle free credit देना है, हाँ. how will it be structured, how will repayment come, overcoming deep rooted apprehensions by pilot projects, then bringing it into mainstream. कितनी एनर्जी लगी होगी. मैंने तो यहां तक गाइडलाइंस एज डीडीएम बनाई, 2-2 पेज की खुद, कि Okay. सिक्योरिटी गार्ड इज नो बॉडी टू स्टॉप एंड से ब्रांच मैनेजर बिजी है, महिला को अंदर जाना अलाउड है. ओके. तो हर एक स्टेप स्टेप आपने खुद से. बिल्कुल लिखा. तो ये कहां से जागृति है, ये सब मूवमेंट्स है. हाँ. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब ने इतना खोला ना, हम्म. stakeholders across the world also noticed. We we, Yes. we were we are largely bigger than Bangladesh Gramin Bank model by any day. Yes. 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 Only we don't get that attention. Yes. So self-help group and the JLG model and the initiatives. See, farmer producer organization is good, but it cannot get the same eyeballs and traction, if I'm looking Yes. at terms of publicity or attention, as much as a SAG can, because the sheer mass is much more. हम्म. एंड फॉर इंस्टीट्यूशन विच दैट टाइम हैड, आई थिंक, अब तो स्टाफ और भी कम है, 5-6 6 हजार होंगे हम, क्लरिकल हम्म. ऑफिसर सब मिला के. फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट मच मैन पावर टू क्रिएट सो मच विद पार्टनरशिप्स, ये एक माने रखती है जो लोग शायद समझ नहीं पाए. एंड उस टाइम पे तो इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी सर. सोशल मीडिया आज तो कनेक्ट करना इज वेरी इजी. यस. उस टाइम पे तो इनफैक्ट कनेक्ट करना भी कितना डिफिकल्ट था. कनेक्ट करना एक्चुअली थोड़ा सिरदर्द भी है, कि एकदम से मैसेज आता है, रिस्पॉन्स भी एक्सपेक्टेड होता है. यस. जबकि एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन को कई बार या उसके ऑफिसर्स को टाइम चाहिए टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज यू हैव टू असेस. हाँ. इट इज नॉट नॉर्मल बैंकिंग कि एकदम से क्रेडिट चाहिए तो अब आ गया. इट हैज टू बी असेस्ड. बट टेक्नोलॉजी, यस, इट हैज चेंज्ड द वे वी वर्क. हम्म. डिजिटाइजेशन नाबार्ड भी बहुत लाया है. हम्म. वी हैव ब्रॉट इट विद इन आवर वर्किंग, वी हैव ब्रॉट यस. इट एक्सटर्नली ऑल्सो, हम्म. and it's part of our regulation also, software enabled regulation हम्म. of cooperative and RRBs. So that is a reality. But as I say, this is all the gloss or the top. The foundation remains deeply the same. Refinance, development, डेवलपमेंट. empowerment, credit outreach. हम्म. ये enabling tools हैं. यस. Faster, in depth ज्यादा, widening ज्यादा जल्दी, बट फाउंडेशन तो वही है. वही. क्योंकि समाज अभी भी बहुत दूर है जहां हम पहुंचना चाहते हैं. यस. जीडीपी चाहे जितना भी हो, पर कैपिटा इनकम तो अब भी कम है. काम है. यस. तो वो एक चैलेंज हमारे पास है. आई थिंक ऑल ऑफ अस, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, और बैंकिंग सेक्टर पार्टनर, सबके लिए चैलेंज रहता ही है. यस. 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 तो यस.
मैं तो वही कहूंगा कि अभी भी बहुत दिल्ली दूर है टू फील सेटिस्फाइड सो सर आप कैसे देखते हैं नाबार्ड को एज अ करियर फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर एंड दिस ईयर वी हैव वैकेंसीज इन द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो एक ये बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट को कि दे हैव आल्सो द अपॉर्चुनिटी। कई बार अदरवाइज ऐसा लगता है ना, मैकेनिक मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर फिशरीज सेक्टर के बच्चों को लगता है यार हम नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे बैंकिंग के, मतलब ये समथिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस इकोनॉमिक्स एंड ऑल, तो ये उनको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नाबार्ड। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? See, career, if you know it better, you have been there coaching them for a long time now, along with your हम्म institution. मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए करियर अच्छा है, हम्म आपको मल्टीफेरियस लर्निंग मिलेंगी, पर जो मैं कई बार इंटरव्यू में भी जो मॉक इंटरव्यू में कह देता हूँ कि द सेम, अब मैं बच्चे ही बोलूंगा, मेरे लिए उम्र में बहुत छोटे यस हैं, द सेम एस्पायरेंट्स और बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंस में हम्म आप सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, then perhaps you should realize कि you are joining general service in a way. यस आपकी assignments can be multiple हम्म across other verticals also. हम्म आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप अपना स्पेशलिस्ट तो रहें, बट आपको बाकी वर्टिकल्स की भी डीप नॉलेज चाहिए, because then only you can contribute effectively when you understand why is the infrastructure department working in a certain way or the climate change vertical working in a certain way.